We too are human beings. बामा ने लिखा है इसको. When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. बोल रही है कि 3rd क्लास तक जब मैं थी, मैंने नहीं देखा कि लोग कभी अनटचेबिलिटी की बात कर रहे थे. अनटचेबिलिटी क्या होती है? अस्पृश्यता. अस्पृश्यता यानी छुआछूत. तो छुआछूत के बारे में लोग खुलकर के बात करें, ये उसने कभी नहीं देखा. लेकिन उसी क्लास तक ये लड़की जो है, शी एक्सपीरियंस दैट. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. घर वापस आ रही थी बैग टांग करके शोल्डर पर, कंधे पर. 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन बच्ची थी, आने में 30 मिनट लगता था. खेलते कूदते आती होगी. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along watching all the fun and games that were going on. All the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. सब कुछ बढ़िया से देखते हुए, खेलते कूदते, लोगों को देखते, दुकानों को देखते आती थी. समय लगता था आधे से 1 घंटा. The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not go off on his bike for 3 days and who kept paddling as hard as he could from break of day. अलग अलग लोग की परफॉर्मेंस, जैसे स्नेक चार्मर जो बीन बजा करके सांपों को नचाते हैं, उसको देखना. साइकिलिस्ट को देखना जो लगातार पैडलिंग किए जा रहा था, या बंदर का तमाशा देखना. द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, द स्पिनिंग व्हील्स, the Marietta temple, the huge bell hanging there, the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks and all the other shops next to each other. यानी ये रास्ते में ये जो सारी चीज़ें दिखती थी, सब देखते हुए एंजॉय करते हुए आती थी. The street light always demonstrating how it could change from blue to violet. The Narikurvan hunger gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. इतनी लिस्टिंग बता रही, इतना सामान, इतनी चीज़ें जो रास्ते में दिखती थी. Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. हर चीज़ फैसिनेट करती थी, जब मन करता था खड़े होकर केवल देखते रहें. At times, people from various political parties would arrive, put up stage and haranguers throw their mics. कई बार ऐसा भी होता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले आते थे और भाषणबाजी करते थे माइक लगा करके. Then there might be a street play or puppet show or no magic, no miracle stunt performance. और कभी कभी क्या होता था, कोई नुक्कड़ नाटक होता था, कभी कभी कठपुतलियों का शो होता था, और कभी कभी नो मैजिक नो मिरेकल, मतलब सारी चीज़ दिखाई जाती थी, कहा जाता था जादू नहीं है. ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. ये सब समय समय पर होता रहता था. यानी स्कूल से घर आने में कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी जिसमें मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते थे. Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. अभी एक डोली चाय वाला बड़ा फेमस हुआ है, हाँ देखे होंगे. बिग बॉस में जब वो चाय बनाता है, कैसे होता है, कोई भी चाय बनाने वाले कैसे बनाता है, ऐसे उठा करके ऊपर से गिराते हैं दूध या क्या करते हैं, है ना. तो उस तरह से कॉफ़ी कैसे लोग बनाते थे, वो बच्ची के लिए वो भी देखने वाली बात थी. The way some people sat in front of the shop chopping of onion, कैसे कुछ दुकानों के सामने लोग बैठ करके चॉपिंग करते थे ओनियन की, यानी कैसे प्याज काटते थे. Their eyes turned elsewhere so that they would not smart. और ऐसा भी होता था कि कहीं और देख रहे हैं और काटे जा रहे हैं प्याज. The almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. कभी कभी बादाम के पेड़ों पर नजर जाती थी, जो कभी झड़के कुछ बादाम गिरते थे नीचे. All these sights taken together would rather my legs and
would tether my legs and stop me from going home. तो इतनी सारी चीज़ें देखने को थी, तो बच्ची इसलिए रुक जाती थी, घर नहीं जाती थी. And then according to the season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, palm fruit, guavas, jackfruit. अलग अलग सीजन के अलग अलग फल है ना. आम है, खीरा है, गन्ना है, शकरकंद है, बाकी कटहल, चना और अमरूद. स्वीट पोटैटो कहा जाता है शकरकंद को. पाम भी एक तरह से एक फल होता है, साउथ में होता है खूब. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सैवरी फ्राइड स्नैक्स. और क्या देखती थी, लोग दुकान पर मिठाइयाँ बेचते थे, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिन सीड्स एंड आइस लॉलीज. पायस कहा जाता है, जो हमारे यहाँ खीर बनती है, साउथ में उसको पायस कहा जाता है या पायसम कहा जाता है. Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up. The landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over the stone ledge. तो एक दिन ऐसे वापस आ रही थी, तो देखी कि एक जगह पर काम चल रहा था, लोग ज़मीन पर काम कर रहे थे, मालिक बैठा हुआ था. Our people were hard at work, driving cattle in pairs round and round to spread out the grain from the straw. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there watching the fun. तो वहाँ पर खड़ी होकर के देखने लगी. थ्रेशिंग का काम चल रहा था जानवरों की हेल्प से, बाकी लोग लगे हुए थे, काम कर रहे थे. उसके अपने लोग, जो बच्ची ये नरेट कर रही है, जो लेखिका ये बात बता रही है. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar. उसी समय बाजार की तरफ से एक कोई बड़ा आदमी आया. बड़ा का मतलब उम्र में बड़ा. The manner in which he was walking along made me want to double up. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. ये देखो कैसे लेकर के खड़ा है, देखो ध्यान से, जो पिक्चर बनी हुई है इसमें. हाँ, छोटा सा थैला उसको कैसे पकड़ के वो लेकर के जा रहा था, देख करके बच्ची को बहुत हंसी आई. I guess there was something like vadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. कुछ तला हुआ था उसमें, तेल बाहर से दिख रहा था. He came along holding out the packet by its string without touching it. Stood there thinking to myself, if you hold it like that, wouldn't that package come undone and the vadais fall out? तरीका ऐसा था, उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए जो हाथ में ये लिया है. The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him. तो वो जा करके अपने लैंडलॉर्ड को उसने दे दिया. Cupping the hand that held the string with his other hand, the landlord opened the parcel, had begun to eat the vadais. और वो उस तरह से ही ला रहा था कि मतलब किसी से वो टच ना हो, और जाकर के सीधे मालिक को दे दिया. उसने खाना शुरू कर दिया. After I had watched all this, at last I went home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. I fell about with laughter at this memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. But Annan मतलब भैया, अन्ना बोला जाता है साउथ में, was not amused. हंस के बता रही थी कि ऐसा देखा मैंने, बड़ा मजा आया, पता नहीं क्यों ऐसे लटका करके ले जा रहा था, मतलब ढंग से ऐसे पकड़ के ला सकता था. And then told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. बोला कि वो आदमी जिसको देखे तुम्हें हंसी आती, ये हंसने वाली बात नहीं थी. He said everybody believed that they were upper caste and that therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. अच्छा, एक बात और भी है कि वो पैकेट भी वो लिया था, तो इसमें तो दिखा रहा है कि हाथ में पकड़ा है, लेकिन वो देखो ऊपर से धागा लगा हुआ है ऊपर जिसको वो पकड़ा है. मतलब काम करवाना है, लेकिन वो टच नहीं होना चाहिए. वो स्ट्रिंग में इसलिए लटका करके उसको लाया ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो जाए, ताकि वो जिसको कह सकते हैं कि अशुद्ध ना हो जाए. ये छोटी बच्ची जब उसने भैया को अपने बताया, तो भैया ने उसे समझाया कि बेटा बात ये है, ये हंसने वाली बात नहीं है, और ये बहुत
इंटरेस्टिंग है समझना, कई बार कुछ चीज़ें हमें हास्यास्पद लगती हैं लेकिन वो हास्यास्पद होती नहीं है। When I heard this, I didn't want to laugh anymore. अब जब समझ गई बच्ची, हंसी गायब हो गई। I felt terribly sad. बड़ा बुरा लगा। How could they believe that it was disgusting if one of us held that packet in his hands? हम में से कोई अगर उसका पैकेट हाथ में पकड़ता तो ये डिस्गस्टिंग कैसे होता? Even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. खास करके जब वो बाकायदे केले के पत्ते में लपेटा गया था, उसके ऊपर से पेपर लगा था, तो कैसे टच होता वो? I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vadais myself straight away. इतना गुस्सा आया इस बच्ची को, कह रही कि मेरा मन किया कि जा करके अभी जाके वड़ई को टच कर दूं। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. ये भी बुरा लगा, तो ऐसे लोगों के लिए काम ही क्यों करना? Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and holds them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. मतलब कोई बैठे बैठे ऑर्डर दे रहा है, हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग बड़े ही विनम्रता के साथ जा करके एकदम बेचारा की तरह जा करके ला करके खिलाता है, ये कौन सी बात हुई? द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। इस तरह का विचार जो आया तो गुस्सा आ गया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins together? Did that mean they must lose all human feelings? यानी इन लोगों के पास क्या कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है, केवल कुछ पैसे के लिए इनके साथ ये सलूक किया जाएगा? बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो देखो यही है इसका टाइटल, है ना, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी इंसान हैं। आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरंड्स फॉर दीज फेलोज। हमारे लोगों को उन जैसे लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन दियर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। बस ये करना चाहिए कि उनके खेत में जा रहे हैं तो काम करें, ठीक है, काम करते हैं। जो काम करने में बेइज्जती महसूस हो वो काम न करें, काम करें, अपना जो भी हमारा बनता है वो हमें पैसा मिले, हम अपने घर आए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। तो उनके जो राइटर हैं, बामा नाम है ना इनका, इनके भैया एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छुट्टियों में घर आए थे। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। बगल के गांव में लाइब्रेरी से किताब लेने जाते थे वहाँ पर वो। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक। One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anna looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Anna told him his name. Immediately the other man asked, "Thambi, on which street do you live?" The point of this was that he knew on which street we lived. He would know our caste too. ऐसा यहाँ भी होता है, बस तरीका बदल गया। किसी ने उसको पहचाना नहीं तो नाम पूछा, नाम से पता नहीं चला तो बोला कहाँ रहते हो, ताकि रहने की लोकेशन पता चल जाए, तो ये पता चल जाए कि उसकी जात क्या है। जैसे यहाँ पर जब जात पूछी जाती है तो क्या कहा जाता है? नाम क्या है? नाम बताए, पूरा नाम बताओ। तो जैसे पूरा नाम कोई पूछता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि सामने वाला आपकी पहचान, आपके जाति से करना चाहता है, आपको समझना चाहता है। और थोड़ा समय बदला है तो चीजें अब ये हो गई हैं कि क्या करते हो, तो आप बताओगे कि कौन सी जॉब में है, कितना पा लेते हो, कितना कमा लेते हो। तो उसमें बात ये कही जाती है कि आज की डेट में अगर कोई पूछता है कि आप कितना कमा लेते हैं, तो ये पूछ करके वो ये जानना चाहता है कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है। आप ज़्यादा कमाने वाले हैं तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, आप कम कमाने वाले हैं तो आपको कम सम्मान मिलेगा। घर घर की कहानी है, घर में दिन भर बर्धे की तरह, है ना, बैल की तरह कोई लगा रहता है, उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो एक आदमी जो बाहर रह करके 15-20 हजार भी कमा रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसको बस सम्मान इस बात का मिलता है कि वो कमाता है। अच्छा, जो घर पे काम कर रहा है वो क्या कमाई नहीं है?
है, ये सोच का घटिया स्तर है। तो घर पे रह के मेहनत करने वाला, कमाने वाला, समय देने वाला ज़्यादा सम्मान का पात्र होना चाहिए, क्योंकि समय पर वही काम आता है, न कि बाहर 20,000 या 1 लाख कमाने वाले। अगर किसी को लगता है कि वो पैसा भेज कर या पैसा दे करके अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लिया उसने, तो ये निरा बेईमानी और बेवकूफ़ी है। क्योंकि कई बार पैसा आपका धरा का धरा रह जाता है, जब कोई इंसान समय पर उपलब्ध नहीं होता तो वो पैसा काम नहीं आता। तो कुल जमा बात यह है कि इंसान की कीमत अधिक होनी चाहिए पैसे से। हमसे पैसा है, पैसे से हम नहीं, है ना। तो कम से कम सोच थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जो सोच में जो पॉल्यूशन समय के साथ आया है, एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते हमें इस बात को समझना चाहिए। Anand told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. तो अनंत ने बताया था उसको कि बेटा इस जाति में पैदा हो गए हैं, इस समुदाय में हैं हम, इसलिए हमको कभी सम्मान मिलेगा नहीं। बट इफ वी स्टडी, लेकिन अच्छी बात है, आगे पॉइंट जोड़ दिया जो मैं बोलने वाला था कि जब लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। अगर हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख करके लायक बन जाते हैं, तो ये सारा अपमान खत्म हो जाएगा। फिर लोग पीछे पीछे घूमेंगे, साहब ई कमवा, साहब ऊ कमवा, है ना। काम कराने के लिए साहब कर करके पीछे लोग लगे रहेंगे। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। छोटी सी बच्ची को ये सीख मिल गई बचपन में ही कि जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, जितना सीख सकती हो सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। अगर आप अपने काम में आगे रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। जरा खोल के देखो तो। वर्क हार्ड एंड लर्न। द वर्ड्स दैट Anand spoke to me that day made a very deep impression on me and I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost. तो जो भैया ने उस समय बताया वो बात दिमाग में बैठ गई। तो बच्ची उस तरह से उसने खूब मन लगा के पढ़ाई की, और इतने मन लगा के पढ़ाई की कि आज उन्होंने जो लिखा आज तुम बैठ के पढ़ रहे हो क्लास में, है ना। As Anand had urged, I stood first in my class. जैसा भैया ने कहा था, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई। Because of that many people became my friends. और उसके बाद कई सारे लोग मेरे दोस्त बन गए।